So let it start होने दो इसको. Okay. So as I have told you, so today we have started with the qualitative inorganic analysis, and I gave you the introduction also that what your this inorganic analysis is all about. So you are basically dealing with the identification of elements or group of elements present in a given sample. तो यूजुअली क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो आपका सैंपल है इट्स अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, और आपको क्या करना है, एक सिस्टमैटिक स्कीम फॉलो करनी है. ऐसा नहीं है कि मैंने आपको सैंपल दिया तो आप अपनी मर्जी से नाइट्रेट टेस्ट कर लोगे और बाद में क्लोराइड टेस्ट करोगे, या सबसे पहले आपने क्लोराइड टेस्ट कर लिया और फिर जाके आप नाइट्रेट टेस्ट कर रहे हो. नो, देयर इज अ सर्टेन स्कीम दैट हैज टू बी फॉलोड, एंड दैट स्कीम इज इन अ वेरी इज फॉलोड इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर. ठीक है, तो एक ऑर्डर है जो हमको फॉलो करना है, उसके बाद ही हम रिस्पेक्टिव आयंस या कटायंस पे मूव करते हैं. ठीक है, सो what you are going to do, that is, I've already told you are going to test your sample for acidic and basic radicals, means anions and cations. Okay, then I told you certain applications also. Forensic sciences, ticket can be used to identify substances left at crime scenes. एग्रीकल्चरल साइंसेस, मैंने आपको सॉइल और वाटर सैंपल का एग्जांपल दिया था. फर्टिलाइजर सैंपल्स कैन आल्सो बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ दिस क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस. Then I gave you the example of food samples also, where you were testing the purity. I gave you an example for adulteration. ठीक है, तो ये कुछ एरियाज है, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं, बट फॉर द टाइम बिंग आई कुड हैव, मतलब आई कुड थॉट ऑफ दीज 3 एप्लीकेशंस ओनली. ठीक है, या दीज 3 एरियाज ओनली. देन इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपको अनायंस कौन कौन से होंगे ये मैंने आपको बता दिया था. नाइट्राइट, नाइट्रेट, सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड. देन कार्बोनेट, एसिटेट, फ्लोराइड, फॉस्फेट, बोरेट एंड ऑक्सलेट. देन बेसिक रेडिकल्स which is dealing with the cations. तो cations का मैंने आपको बता दिया है. ठीक है, कि कौन कौन से cations आपके हैं सिलेबस में. तो what is the outline of the analysis? Common procedure: you are going to prepare the sample solution using a suitable solvent, and that sample solution will be tested with the certain reagents, and the formation of PPT will indicate the presence of cation or anion. Now, the formation of PPT is dictated by, or it is controlled by, the two concepts, that is ionic product, which is again we have discussed. Okay, so ionic product is dealing with the product of the concentration of ions, but the solution here is of any concentration range. Okay, at a given temperature and given concentration you have certain value of ionic product. Okay, but when we talk about solubility product, it is dealing with the saturated solutions only. Okay, so if a solution is behaving as a saturated solution at 25 degrees Celsius, it will not behave as a saturated solution at 35 degrees Celsius or 45 degrees Celsius. So KSP is valid for saturated solutions at a given temperature. Okay, so this is how you define your KSP and ionic product, and how it affects your analysis. Because if the ionic product is less than solubility product, solution is unsaturated, no PPT formation will be there. Solution will be saturated but no PPT formation. But if your ionic product exceeds
solubility product, the solution becomes super saturated and PPT formation occurs. It means at this stage, ions cannot stay in solution form. They PPT. ठीक है? Then we discussed about common कि आपको कोई भी आयन की आयनाइज किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन सप्रेस करनी है, से क्या होगा, it will affect the amount of ions present in your solution and ultimately this will affect the formation of PPT. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं. All right, now this is the important part that I wanted to highlight. Now different methods. On the basis of the size of sample, you classify the qualitative analysis in 3 categories: macro, micro, and semi-micro. So when the approximate volume of sample, volume of sample means I'm talking about you have taken the sample, you have prepared the sample solution. Okay, so it means if you are taking 10 ml of sample solution and you are treating that 10 ml of sample solution with 1 to 5 ml of reagents, then that kind of analysis falls in the category of macro qualitative analysis. ठीक है, अगर हम 0.1 ml सैंपल से डील कर रहे हैं, सैंपल सोल्यूशन से डील कर रहे हैं, और 1 ml सैंपल सोल्यूशन को 0.1 ml रिएजेंट के साथ ट्रीट कर रहे हैं, so that will be your micro. But if the analysis lies in between the range of these two, ठीक है, तो आपका सेमी माइक्रो हो जाता है. सो इफ यू आर टेकिंग 1 ml ऑफ सैंपल एंड यू आर ट्रीटिंग इट विद 1 ml ऑफ रिएजेंट, और ये कभी कभी इससे भी कम हो जाता है, यू एड 1 or 2 drops of reagent only. So that is your semi micro analysis. ठीक है, ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ व्हाट इज आवर एम? जब भी आप स्टार्ट करोगे एक्सपेरिमेंट, अपनी फाइल में लिखोगे, तो आपका जो एम होगा दैट विल बी टू एनालाइज द गिवन मिक्सचर फॉर एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स. ठीक है, इसके लिए आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द एपरेटस. रिएजेंट्स तो आपके एज पर द रिक्वायरमेंट रहेंगे, but what else you are going to use? You are going to use test tube stand, dropper, watch glass, tong, beaker, wash bottle, heating block, centrifuge machines and centrifuge tubes. ठीक है, so ये आपके apparatus रहेंगे. This is how your centrifuge machine and centrifuge tube looks like. ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है. अंदर इसके क्या है, आपके यू हैव स्लॉट्स और होल्डर्स यू कैन से, जिसमें आप ये सेंट्रीफ्यूज मशीन डालते हो. ठीक है, और सेंट्रीफ्यूज मशीन डालने के बाद यू कैन सी अ रेगुलेटर, अ नोब इज देयर, यू रोटेट इट. यहाँ एक ऑफ लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको. 1 2 3 4 सिग्निफाइज द स्पीड, इट डिनोट्स द स्पीड. 1 पे लोएस्ट स्पीड पे है, 2 पे जो है ज्यादा स्पीड, 5 पे आपकी मैक्सिमम स्पीड होती है. तो जब भी हम सेंट्रीफ्यूगेशन स्टार्ट करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करना शुरू करते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम द लोएस्ट स्पीड एंड वी ग्रेजुअली इंक्रीज द स्पीड. ऐसे नहीं करना कि ट्यूब डालते ही आप 5th स्पीड से स्टार्ट करोगे. नो, इट विल ब्रेक योर ट्यूब. ठीक है, ट्यूब ब्रेक हो जाएगी. ग्रेजुअली हमें स्पीड इंक्रीज करनी होती है, और जब हम बंद करते हैं तो ग्रेजुअली ही डिक्रीज कर कर आते हैं. 5 से 4 पे जाएंगे, 4 से 3 पे जाएंगे, और 5 पे हम बहुत रेयरली जाते हैं क्योंकि अमाउंट इतना कम है हमारे सेमी माइक्रो एनालिसिस में कि हमें 5 तक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है. अप टू 3 मोर वर्क विल बी डन. ठीक है, तो इट इज इसको ऑपरेट करना इज समथिंग लाइक जैसे आप घर में मिक्सर ऑपरेट करते हो. देखा है कभी घर में किचन में मिक्सर, ब्लेंडर? Have you heard about it? मतलब देखा होगा, सबके घर में है. तो बिल्कुल वैसे ही है, आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हो, धीरे धीरे कम करते हो. ठीक है, अभी मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो आपको शो करूंगी, तो उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सो व्हाट आर दी स्टेप्स इन्वॉल्व इन एनालिसिस? पूरा एक मैं आपको आउटलाइन दे देती हूँ. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट से. इसमें क्या होता है, ये जस्ट एक इंडिकेशन होता है, वी कांट टेक इट एज कंफर्मेशन.
इंडिकेशन और कंफर्मेशन में डिफरेंस है। इंडिकेशन में कि एक हमें हिंट मिल गया कि ये हो सकता है, कंफर्मेशन में वी आर श्योर, वी आर 100% श्योर, वी आर मोर देन 100% श्योर कि यही आयन प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, प्रिलिमिनरी टेस्ट ही करना होता है। सो प्रिलिमिनरी टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम कलर और ड्राई हीटिंग टेस्ट करते हैं, दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन डिटेल में। उसके बाद हम सैंपल को एसिडिक रेडिकल के लिए टेस्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले होगा ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। ग्रुप आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब है, अनायंस को हमने ग्रुप्स में क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो पहले वो ग्रुप कंफर्म करेंगे। सपोज हमने सल्फाइड, सल्फाइड और सल्फेट को एक ही ग्रुप में क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो एक ग्रुप रिएजेंट से हम इसको ट्रीट करेंगे। अगर पर्टिकुलर पीपीटी आता है तो हाँ, इनमें से कोई इन तीन में से कोई एक प्रेजेंट हो सकता है। तो उन तीन में से कौन सा प्रेजेंट है, दैट विल बी कंफर्म्ड विद द हेल्प ऑफ कंफर्मेटरी टेस्ट। ठीक है, तो कभी भी आप ग्रुप आइडेंटिफिकेशन आप लोग स्किप मत करना, डायरेक्ट कंफर्मेटरी पे मत आना, बिकॉज इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। ग्रुप आइडेंटिफिकेशन अगर कंफर्म हो जाती है, मान लो आपने सैंपल लिया एंड यू हैव स्टार्टेड डायरेक्टली डूइंग द कंफर्मेटरी टेस्ट, तो कितने सारे कंफर्मेटरी टेस्ट हो गए आपके। आपने सल्फाइड के लिए भी टेस्ट किया, आपने सल्फाइड के लिए भी टेस्ट किया, आपने सल्फेट के लिए भी टेस्ट किया, तो और वो प्रेजेंट थे नहीं। तो अगर आप ग्रुप आइडेंटिफिकेशन कर लेते तो आपको कंफर्मेटरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ग्रुप आइडेंटिफिकेशन इज ओनली अ सिंगल टेस्ट जिससे हमें इंडिकेशन मिलती है कि हाँ, इन तीन में से कोई एक हो सकता है। तो यही हमारा मेथड रहेगा, पहले हम ग्रुप आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर हम कंफर्मेटरी टेस्ट पर जाएंगे। एंड वंस वी आर डन विद द anionic part, we will move to the cationic part. Again group identification will be done and confirmatory test will be done. Okay, तो मैंने आपको सेंट्रीफ्यूगेशन बता दिया, मैंने आप लोगों को जो है वॉशिंग पीपीटी बता दिया। अब मैं इससे आप लोगों को इससे रिलेटेड आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहूंगी, वो वीडियो देखते हैं, उससे आप लोगों को क्लियर होगा। सो एक बार मैं बता देती हूँ क्या करते हैं। सॉलिड प्रेसिपिटेट को हम सेंट्रीफ्यूगेशन से ही सेपरेट करते हैं, फिल्ट्रेशन हम यूज नहीं करेंगे। जो हमारे पास क्लियर लिक्विड आता है उसको हम सेंट्रीफ्यूगेट बोलते हैं। जैसे फिल्ट्रेशन में जो क्लियर लिक्विड आता है उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन में जो क्लियर लिक्विड आया उसको हम सेंट्रीफ्यूगेट बोलेंगे। ठीक है, और जो भी प्रिकॉशन लेनी है हमने, वो मैं आपको वीडियो अभी दिखा रही हूँ, उससे आपको पता चलेगा कि कैसे हम सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं। जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी शो यू दैट वीडियो। समझ में आ रहा है कि क्या करने वाले हैं हम या नहीं? So this is a video which we have made in the lab related to the centrifugation. एक मिनट, लेट मी गो बैक टू द वीडियो स्टार्टिंग पार्ट अगेन। देखो ये आपकी सेंट्रीफ्यूज मशीन है, जैसे मैंने आपको भी दिखाई थी, इमेज बिल्कुल वही है। इसका इंटरनल आप देखो, दिस इज हाउ इट लुक्स इंटरनली। ये 6 इसमें स्लॉट्स हैं जिसमें आप सेंट्रीफ्यूज ट्यूब रखते हो। ठीक है, कभी भी एक अकेली सेंट्रीफ्यूज ट्यूब मत रखना, बिकॉज वी नीड टू बैलेंस दी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर आपने एक अकेले सेंट्रीफ्यूज ट्यूब रख के ऑन कर दिया, योर ट्यूब विल ब्रेक। ठीक है, तो अगर आप सपोज यहाँ अपनी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब रख रहे हो तो इसके ऑपोजिट में भी दूसरी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होनी चाहिए। ठीक है, अब आप ये बोलोगे मैम मान लो हमारे पास इतना पीपीटी नहीं है कि हम 2 सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में डाल के रखें, तो उसका क्या सोल्यूशन है। अगर इस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब यहाँ पे आपने अपना पीपीटी डाला है, मतलब वो वाली सेंट्रीफ्यूज ट्यूब रखी है जिसमें पीपीटी प्रेजेंट है, तो
यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, दूसरा सेंट्रीफ्यूज ट्यूब लेके सिंपल वाटर ऐड करके रख सकते हो, बिकॉज हमें सिर्फ क्या करना है, अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को ही बैलेंस करना है, ठीक है, और दोनों ट्यूब्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो ये चीज आप लोगों को इसको यूज करते टाइम ध्यान रखनी है, ठीक है। अंदर से ये ऐसी दिखती है, बाहर से ये ऐसी दिखती है। व्हेन यू स्टार्ट ऑपरेटिंग इट, यू कवर द लिड एंड यू regulate the knob. Okay, so this is how your centrifuge tube looks like. अब क्या हम सेंट्रीफ्यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखो हमारे पास कुछ पीपीटी है, इसको हमने सेंट्रीफ्यूज करना है, तो देख सकते हो कि कैसे डिस्पर्स है, अभी भी ऊपर ऊपर है। इसको हमने सेटल डाउन करना और लिक्विड को डिस्कार्ड करना है। अब आप देखो कि हमारे पास इतना था कि हमने दो ट्यूब्स में इसको डिवाइड कर लिया। वी आर कीपिंग बोथ द ट्यूब्स एट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। रुक जाओ एक मिनट, लेट मी गो बैक अगेन, ठीक है, ऑपोजिट स्लॉट्स में रखी हुई है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेंट्रीफ्यूज पार्ट। फर्स्ट स्पीड पे गए हैं हम लोग, ठीक है, एंड वी आर होल्डिंग द लिड विद आवर हैंड। फर्स्ट स्पीड से स्टार्ट किया है, फिर थर्ड स्पीड तक गए हैं, एंड अब वो स्पीड हमने जो है डिक्रीज करनी शुरू कर दी है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू डू सेंट्रीफ्यूगेशन। फिर 3 से हम 2 पे आएंगे, 1 पे आएंगे, एंड वी स्विच ऑफ आवर मशीन, ठीक है, रेगुलेटर को हम ऑफ पोजीशन पे ले आएंगे। ऑफ पे लेकर आए, ओपन किया। Now you can see that the precipitate which was dispersed in the solvent has settled down, ठीक है। तो आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन आपका ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो यू नीड टू रिपीट द सेंट्रीफ्यूगेशन। अब हम इस सुपर लिक्विड, ये सुपर नेटेंट को डिस्कार्ड कर देंगे बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। पीपीटी को हमने इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में क्या था, अल्कोहल से वॉश करना था, तो वही अभी मैं आपको अल्कोहल से वॉशिंग दिखाऊंगी नेक्स्ट, उसमें वॉश विद अल्कोहल एंड सेंट्रीफ्यूज। तो क्या कर रहे हैं, पीपीटी है हमारे पास, अल्कोहल का सफिशिएंट अमाउंट डालकर इसमें हम वापस से सेंट्रीफ्यूज करेंगे, ठीक है। अगेन दो ट्यूब्स हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने डालना है इनको, ऑपोजिट पोजीशंस होनी चाहिए इनकी। यू विल स्टार्ट विद वन, यू विल ग्रेजुअली इंक्रीज द स्पीड एंड वी विल कीप ऑन सेंट्रीफ्यूगेटिंग इट फॉर फ्यू सेकेंड्स, और उसके बाद वापस से स्पीड डिक्रीज करके हम उसको निकाल लेंगे। एंड वी थ्रू आउट दिस रोटेशन पार्ट हमें लिड को होल्ड करके रखना है, ठीक है, जैसे मिक्सर का हम वो लिड होल्ड करके रखते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पे होल्ड करके रखना है। सी, दिस इज हाउ योर पीपीटी हैज सेटल्ड डाउन। तो अब हम अल्कोहल को डिस्कार्ड कर देंगे, कर दिया हमने, और ये जो हमारा पीपीटी आया इसको हम फर्दर आगे यूज करेंगे। क्लियर है आप लोगों को? शुड आई प्ले द वीडियो अगेन? क्लियर है मैम, क्लियर है मैम। ठीक है, तो ये तो जब हम, अगर हमें चांस मिलता है प्रैक्टिकली करने का, तो हम इस तरह से सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ आई एम गोइंग बैक टू द प्रेजेंटेशन अगेन। Okay, so we are done with centrifugation and washing the PPT part. Okay. Now आज मैं सिर्फ आपके साथ प्रिलिमिनरी टेस्ट डिस्कस करूंगी, उसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। सो प्रिलिमिनरी टेस्ट में क्या है, आपको आपका यू नीड टू ऑब्जर्व द कलर ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। आपको एक सैंपल दे दिया है, आपको उसका कलर ऑब्जर्व करना है। अगर आपको मिक्सचर थोड़ा सा भी ब्लैक लग रहा है देखने में, तो इट इज एन इन्फ्रेंस कि वो कॉपर का सल्फाइड, मतलब मिक्सचर में आपका सल्फाइड प्रेजेंट, इसका कॉपर का, आयरन 2+ का, आयरन 3+ का, कोबाल्ट 2+ का, निकल 2+ का। जैसे ही आपको सैंपल मिलता है, आपको ये ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करनी है कि सैंपल का कलर क्या है और उस कलर से आपको क्या इन्फ्रेंस मिला, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत ब्लू कलर लग रहा है तो हो सकता है कॉपर 2+ आयन प्रेजेंट हो आपके सैंपल में। डार्क ग्रीन है
तो क्रोमियम 3+ हो सकता है। लाइट ग्रीन है तो कॉपर 2+, आयरन 2+, निकल 2+। लाइट पिंक है तो मैंगनीज 2+, ये सब आप लिख लो, ठीक है। रेड, पिंक या वायलेट तो कोबाल्ट 2+ का सॉल्ट हो सकता है। ब्राउन या येलो, आयरन 3+। लेकिन अगर कोई भी कलर आप नहीं नोट डाउन कर पा रहे हो, मीन्स द कलर ऑफ योर मिक्सचर इज वाइट, so it is डायरेक्ट इन्फ्रेंस की कॉपर, निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन के सॉल्ट, मतलब ये 5-6 कटायंस तो एब्सेंट हैं आपके मिक्सचर में, ठीक है। ये तो डेफिनेटली नहीं होंगे मिक्सचर में, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट अ लिटिल बिट हिंट, अ स्मॉल इन्फ्रेंस की कौन सा कटायन प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। हैव यू नोटेड डाउन? Yes, ma'am. तो मैंने कुछ पिक्चर्स कलेक्ट किए हैं। आप कोई मेटल कटायन है, वेदर इट इज कॉपर, आयरन 2+, 3+ और कोबाल्ट, निकल, इनके जो सल्फाइड्स, ठीक है, तो ब्लैक कलर होने का मतलब ये मत सोच लेना कि कॉपर सल्फाइड ही प्रेजेंट होगा, हमें कटायन टेस्टिंग करनी पड़ेगी, तो इट विल जस्ट गिव यू एन स्मॉल इन्फ्रेंस, ठीक है। ये देखो, जो कॉपर 2+ है, जैसे कॉपर सल्फेट है आपका, वो ब्लू कलर का दिखता है। क्रोमियम 3+ के जो सॉल्ट्स होते हैं वो डार्क ग्रीन कलर के होते हैं। आयरन 2+ जो है लाइट ग्रीन कलर का होगा, जैसे आपने फेरस सल्फेट देखा होगा या मोहर सॉल्ट देखा होगा, वो लाइट ग्रीन कलर का ही होता है, ठीक है। आयरन 3+ ब्राउन कलर का होगा, जैसे रस्ट होता है ना, इस तरह के इसके सॉल्ट्स होते हैं। देन निकल 2+ लाइट ग्रीन कलर, मैंगनीज 2+ लाइट पिंक कलर, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। और कोबाल्ट के या तो ये जैसे वायलेट है, रेड है, डार्क रेड, डार्क वायलेट है, ऐसे सॉल्ट्स होते हैं कोबाल्ट के। तो अगर ऐसा कोई कलर आपके मिक्सचर में दिख रहा है आपको, तो ये एक इंडिकेशन है कि इनमें से कोई एक कटायन प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। जैसे सपोज मेरे पास क्रोमियम 3+ है मिक्सचर में, बट मैंने कोई ऐसा सॉल्ट भी डाला है मिक्सचर के अंदर जो व्हाइट कलर का होता है। सपोज आई हैव एडेड से अमोनियम कार्बोनेट, अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम कार्बोनेट एंड क्रोमियम 3+ सॉल्ट, तो जितना डार्क ग्रीन दिखना चाहिए तो उतना डार्क ग्रीन तो नहीं दिखेगा। डू यू एग्री विद दिस? राइट? समझ आ रही है बात कि I have given you a mixture of chromium salt plus ammonium carbonate is added to that salt, ठीक है। तो जितना डार्क ग्रीन एक प्योर क्रोमियम 3+ सॉल्ट होता है उतना डार्क ग्रीन नहीं दिखेगा। तो कलर से सिर्फ हम एक लिटिल बिट हिंट ले सकते हैं, इट इज नॉट द कंफर्मेशन, इट इज जस्ट द इन्फ्रेंस, ठीक है। अब जैसे आपका कॉपर 2+ है, उसमें अगर मैं अमोनियम कार्बोनेट का सॉल्ट डाल दूं या सोडियम कार्बोनेट सपोज आई हैव एडेड, तो वो ब्लू जो है और लाइट ब्लू दिखने लग जाएगा। तो कलर सिर्फ आपको इंडिकेशन देगा, डोंट टेक इट एज द कंफर्मेशन, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। as soon as you receive your sample, you note down the color, you note down the inference. After that you start performing dry heating test. अब ड्राई हीटिंग टेस्ट का क्या मतलब होता है? यू टेक द सैंपल, स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल इन द टेस्ट ट्यूब एंड यू हीट इट डायरेक्टली ओवर द फ्लेम, फ्लेम के ऊपर डायरेक्टली हीट करना है एंड यू नोट द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अगर मान लो आपका सॉल्ट ऐसा था जो वाइट था जब ठंडा था और हीटिंग पे वो येलो हो गया, it means zinc is present and this color change has happened because of the formation of zinc oxide. तो ये भी एक इन्फ्रेंस है, ठीक है। या फिर जब आपने सैंपल को हीट किया तो इनिशियली वो ब्राउन था लेकिन हीट करने पे वो ब्लैक या रेड हो गया, तो इट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड। तो आयरन का टाइम प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। हीट करने पे क्या हुआ? रॉटन एक्स स्मेल, मतलब जैसे हाउ टू आइडेंटिफाई दैट स्मेल, जैसे सीवेज वाटर में से आती है, अगर ऐसी स्मेल आती है तो इट इज
बिकॉज ऑफ द सल्फाइड आयन प्रेजेंट इन योर मिक्सचर। और अगर हीट करने पे कलरलेस पंजेंट गैस मतलब गैस इवॉल्व हुई एंड यू स्टार्ट फीलिंग कि आपके थ्रोट में इरिटेशन हो रही है, तो इट इज बिकॉज ऑफ क्लोराइड आयन, इट मे बी बिकॉज ऑफ क्लोराइड आयन। फिर अगर ऐसा लग रहा है कि बर्निंग सल्फर लाइक ओडर, तो सल्फाइड आयन हो सकता है। कलरलेस गैस है बट कोई ओडर नहीं है, तो इट मे बी बिकॉज ऑफ कार्बोनेट एंड आयन। If you are having brown gas with pungent odor, it is because of bromide ion. And if you are having brown gas without odor, तो ये आपका नाइट्रेट आयन हो सकता है। ये कुछ कुछ छोटे छोटे इन्फ्रेंस हैं जिससे हमें इंडिकेशन मिलेगा। ठीक है, जो आपका ग्रुप आइडेंटिफिकेशन है और कंफर्मेटरी टेस्ट है, दैट वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशन हो गया आपका। तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है दिस प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशन के बाद आपका अनायन एनालिसिस स्टार्ट होगा। तो अनायन एनालिसिस में हम पहले ग्रुप आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर हम कंफर्मेटरी करेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना हो? मैम जो सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है उसके अंदर आपने कहा कि ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे स्पीड को, तो कोई रीजन है क्या उसके पीछे? हाँ, बिकॉज एकदम से अगर आप कोई फोर्स अप्लाई करोगे उसके ऊपर, आपने सैंपल रखा, अपना सेंट्रीफ्यूज ट्यूब रखी एंड यू स्ट्रेट अवे मूव टू द स्पीड 3 और 4, तो जो सैंपल आपका स्टैटिक पोजीशन में था उस पर आपने हाई स्पीड में फोर्स लगा दिया, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स लगा दिया है। ठीक है, दैट फोर्स कैन नॉट बी टॉलरेटेड। मतलब आप ये सोचो, अगर आप कहीं जा रहे हो, बस में बैठे हो या कार में बैठे हो, आप नॉर्मली जब बैठे होते हो यू आर स्टैटिक होते हो, एकदम से सडन ब्रेक लगता है, अगर छोटा ब्रेक लगता है तो हल्की सी मूवमेंट होती है। ठीक है, और बहुत तेज ब्रेक अगर लगा है तो कई बार ऐसा होता है कि आप आगे वाली सीट को टच कर जाते हो। ठीक है, Yes. वो एक जर्क आता है। तो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर आल्सो। आपने स्टैटिक पोजीशन पे अपनी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को रखा और आप एकदम से ये लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर दोगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो जो ट्यूब है दैट विल नॉट बी एबल टू हैंडल दैट मच अमाउंट ऑफ फोर्स इनिशियली। एकदम से फोर्स आएगी, वो ब्रेक कर जाएगी। ठीक है, होता है ना, अगर हमें ब्रेक बहुत तेज लगता है तो कई बार इतनी तेज जाके लगता है कि हमारे सामने से सर टकरा गया सामने वाली सीट से, तो चोट लग जाती है। Yes, और ma'am. अगर धीरे से ब्रेक लगता है या धीरे धीरे गाड़ी रोकते हैं तो उतना हमें नहीं पता चलता, कई बार हम हिलते भी नहीं है जब धीरे धीरे गाड़ी बंद होती है। सो दिस इज व्हाट समथिंग हैपनिंग हियर आल्सो। तो आपको धीरे धीरे आप स्पीड बढ़ाओगे तो वो जो मैकेनिकल स्ट्रेस है आपके सैंपल कंटेनर पे वो नहीं आएगा, तो आपकी ट्यूब ब्रेक नहीं करेगी। ठीक है, ऐसे ही आपको रोकते टाइम भी यही ध्यान रखना है कि धीरे धीरे आप बंद करो। ठीक है, एनीथिंग एल्स? और किसी को कुछ पूछना है? I think I should stop presenting. Okay. Any doubt you